Ladies and gentlemen, the moment that we all have been waiting for and the reason we have all assembled here today has now come. May I kindly request our chief guest, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Governor, Kerala State, to share his insights with all of us. नमस्कारम। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। आज का कार्यक्रम वैसे विशेष है और इस विशेष कार्यक्रम में आप सब केवल मेरे आने से आप सब यहाँ आ गए हैं, अन्यथा आज के छुट्टी के दिन, रविवार के दिन आप कहीं ना कहीं खुद को एंटरटेनमेंट करते रहेंगे और ऐसे कामों में ही आप व्यस्त रहते होंगे। परंतु मुझे आज का समय मिला यहाँ आने का, तो मैंने सोचा आज यहाँ आऊँगा और आप जिस तरह से यहाँ कुछ काम जो कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उसको थोड़ा और नज़दीकी से देखूं, ऐसा मेरा प्रयास था। On this very occasion, we have amongst us your Vice Chancellor, Professor G.K. Shirudi ji, Registrar Professor Dr. Agashe, Professor Dr. Biju Pillai, who is Dean of Faculty of Commerce, Dr. Mittal Mohite, Controller of Examinations, all the dignitaries sitting here, faculty members, all other position holders in this university, and my dear young students. आज के इस कार्यक्रम में आपने आपके सभी व्यस्त कामों को छोड़कर यहाँ आप जब आए हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए आए हैं। आपकी तरह मैं भी यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए आया हूँ। The way you have been behaving yourself, having all your studies, trying to understand what you want to become next future, that dedication of yours is really an experience for me. Normally we always have been saying कि हमारे आज के बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं हैं, डिसिप्लिन तो है ही नहीं। But what I see today here is a quite different picture. You all are so disciplined and you are bound to listen to me also, whether you like it or not. That shows how you are disciplined. आपको पता है कि एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति आकर यहाँ क्या बात करेगा, बिल्कुल सही है। I am not a legal luminary and not an educational expert. Never knew what it is, what the education is. But being a chancellor of many universities, I always had opportunities to visit the universities, all major educational institutions, and tried always to understand what the education means. और आने वाले समय के लिए एजुकेशन कितनी अहम भूमिका निभाता है, ये मेरे धीरे धीरे ध्यान में आने लगा। और मुझे लगता है आप जो यहाँ बैठे हैं मुझसे और बेहतर जानते हैं what you are sitting for here, what you have next to do
I will not call you a next generation. You are today's generation who will be designing the destiny of our society and the country that is yet to come. And that is the reason why you are sitting here. आप सबके सामने एक कुछ ना कुछ ध्येय है, गोल है, और वो गोल होने की आवश्यकता ये होती है. It is not that you have completed your studies at the 12th standard और बाद में अभी क्या करेंगे, चलो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करेंगे. ऐसा सोचा, इतना ही सोच थी कि आपकी कि अभी तो 12वीं तो पास कर ली है, आगे क्या करेंगे. घर में आपके जो अभिभावक होते हैं, पालक होते हैं, पेरेंट्स, उन्होंने भी सोचा अभी घर के बैठे करेंगे क्या, चलो चलो पढ़ो और ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, चलिए और क्या करेंगे, हो सकता है तो पीएचडी की भी पढ़ाई करेंगे. ऐसा कुछ आपने सोचा होगा. बट यू आर डिफरेंट पीपल. You have a certain destination to travel to. You have a goal within yourselves. और वो गोल अगर नहीं है तो आपके जीवन को कोई डिसिप्लिन्ड जीवन नहीं कहेगा, अनुशासित जीवन नहीं कहेगा. गोल होना जरूरी होता है. कहाँ जाने के लिए, कुछ करने के लिए there has to be some destination where you have to travel throughout your life. क्या बनना चाहते हैं हम? वैसे तो हम अपने समाज में देखेंगे, there are many people to whom we can look at, from we can derive some inspiration, and all we can walk on that path also, and you have been doing that. But you have to have your own goal. Learning from their behavior, their destination, their experiences, you can set your goal. You have to. उन्होंने जो गोल सेट किया है, ध्येय उनके सामने रखा है, not necessary to be your goal. आपका गोल, आपका ध्येय, आपका एम अलग होने की आवश्यकता है. And if you don't have that, then आप कहीं पर भी जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं. पढ़ाई के बाद हमको करना क्या है, सीखना क्या है, इसकी अगर मन में कुछ मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, देन यू आर अ रडरलेस शीप, जिसको कहीं डेस्टिनेशन नहीं होता, कहीं भी इधर उधर भटकते जाते हैं. And that itself brings then discipline within you if you have a goal for which you have to work. मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. मेरा एक मित्र था. He was an officer in State Bank of India. तो मैं भी थोड़ा ऐसा ही व्यस्त नहीं था. वो he was working for State Bank of India officer. बात गोवा की है, मैं गोवा से आता हूँ वैसे. तो एक दिन मैंने ऐसे ही संडे के दिन, रविवार के दिन उनको फ़ोन किया, अरे दोस्त क्या कर रहे हो, कहाँ हो. लगभग एक 12 साढ़े 12 बजे थे दोपहर के. तो मैंने कहा ठीक है मैं मिलने आता हूँ. उन्होंने कहा हाँ आ जाइए, मैं घर पर ही हूँ. तो मैं उनको मिलने के लिए घर पर चला गया. Immediately when I saw that, after entering his house, he was lying on his sofa. वैसे हम तो हमारी बहुत मित्रता थी. मेरे आने के बाद उसने खड़ा होना चाहिए वगैरह, ऐसा नहीं. I was not a governor also that time. तो उन्होंने वो वैसे ही लेटा था अपने सोफा पर. तो मैंने पूछा अरे भाई क्या बात है, अभी तो मुझसे ठीक ढंग से बात कर रहे थे फ़ोन पर, बात क्या है. तो मैंने उसको पूछने के बाद अरे नहीं ऐसा ही कुछ नहीं, आओ बैठो. तो हम दोनों, मैं बैठ गया, वो भी बाद में उठकर बैठ गया. तो मैंने पूछा बात क्या है, तबीयत तो ठीक है या नहीं. हाँ ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है. तो फिर हो गया क्या, इतने एक्टिवेटेड क्यों लगते हो, इतने मलूल क्यों लगते हो, हुआ क्या, मायूस क्या.
तो उसने कहा कि अरे भाई ऐसा बात ऐसी है कि आप जानते हैं मैं तो स्टेट बैंक में ऑफिसर हूँ, आज संडे भी है, और आज हमारे स्टेट बैंक के ऑफिसरों के एक फुटबॉल की मैच थी। फुटबॉल, अच्छा, मैंने गोवा में तो फुटबॉल बहुत प्यारा होता है, फुटबॉल वहाँ से हर आदमी जानता है और खेलना भी चाहता है। मुझे भी खेलने की इच्छा हमेशा होती है, इन दिनों में तो जा नहीं पाता। तो मैंने पूछा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अगर वहाँ फुटबॉल खेलने गए हैं, जाकर आए हैं, 1-2 गोल आपने लगाए होंगे। तो उसका कहने था वही तो बात मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ फुटबॉल खेलने के लिए गया और आज मेरा इतना दर्द हो रहा है बदन पूरा कि खेलने के बाद अभी आ गया हूँ। मैंने कहा कितने गोल लगाए वो तो बताइए मुझे। ही वॉज जस्ट लाफिंग, नहीं भाई ऐसा कुछ तो है नहीं, मैं पूरा, आप जानते हैं फुटबॉल का मैदान बड़ा होता है, इस बाजू में एक गोल पोस्ट होता है, वहाँ एक गोल पोस्ट होता है। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि इस गोल पोस्ट से इस गोल पोस्ट तक मैं पूरा मैदान घूमता रहा, दौड़ता रहा 90 मिनट तक। वो 90 मिनट की मैच होती है, एक बीच में इंटरवल के बाद। तो उसमें 90 मिनट तक मैं इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट तक, वहां से यहां तक फिर से घूमता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन इन पूरे 90 मिनट में वो बॉल जो है मेरे पांव को लगा ही नहीं किसी समय। हमारी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम यहां एक कुछ ठीक ढंग से गोल लेकर यहां आए हैं इस दुनिया में। पूरी दुनिया भर यहां से वहां हम घूमते रहें, दौड़ते रहें, गोल नहीं लगा, फुटबॉल में हमारे पांव को लगा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सेट गोल टुडे, इफ नॉट हम घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं यहां से वहां तक, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। वी डू एवरीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। But where is that goal? Where is that football which you should have been touching that, playing with? We don't have that goal. We don't have that aim. वो सेट करने की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। My young friends, this is what we need today. We have to have this. Otherwise हमारा जीवन बेकार का हो जाता है। We don't have destination where to go. कहाँ जाना है हमको पता नहीं है। हमको घर वालों ने भेजा, इसलिए हमने 12वीं की, 12वीं के बाद हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और क्या क्या, ठीक है एक नौकरी कहाँ मिलेगी, वहाँ भी नौकरी, जाएंगे वहाँ नौकरी में। This should not be the way of our life. हमारे जीवन में हर किसी बच्चे में, हर किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ काबिलियत होती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, वी ऑल आर पोटेंशियली डिवाइन। हमारे यहां डिवाइनिटी होती ही है, सो वी ऑल मस्ट टच दैट डिवाइनिटी और नॉट द बैड थिंग्स। हमारे बीच में जो काबिलियत है, हमारे बीच में जो टैलेंट है, स्किल है, लेट अस ग्रो ऑन दैट, लेट अस डू समथिंग फॉर दैट, so that I improve myself and do something. Let me set my goal in my front. That is my destiny, where I have to travel, and I will be working for that throughout my life. ये एक disciplined method of living होता है। Otherwise हम यहीं न कहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, करेंगे क्या? Our parents have said, your parents have sent you to a good, very good educational institution. बालाजी जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है, जिसकी चर्चा होती है वहाँ, यहाँ वहाँ, and you all are here. You should be proud to be a student of Balaji's university. लेकिन यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे इसकी भी सोच हमारे पास होनी चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम, क्या करना चाहते हैं, और इसके लिए हम सबको कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है। वी ऑल आर हियर
और कहाँ जाना है उसकी सोच करनी है। मैं एक बार व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स। आज भी मुझे पढ़ने की आदत है, पुस्तकें पढ़ने की आदत है, सभी भी है। तो दैट टाइम आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर दैट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया आज नहीं आता इतना, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में हर रोज एक कार्टून आता था। यू नो हु वाज द कार्टूनिस्ट? आर के लक्ष्मण। एब्सोल्युटली राइट। आर के लक्ष्मण के कार्टून्स इतने प्रसिद्ध है, मुझे लगता है यहाँ एक पुणे में भी एक आर के लक्ष्मण रोड है, मैंने देखा कहीं पर। तो आर के लक्ष्मण के कार्टून्स इतने अच्छे होते थे। आई वॉज दैट टाइम जस्ट एंटर्ड कॉलेज, और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा आर के लक्ष्मण का कार्टून। आई जस्ट टेल यू व्हाट इट वाज। कार्टून में क्या था? वन स्टूडेंट who had passed his MBBS, just coming out of the college, MBBS, the medical college. I think he also had completed his internship, and then he was just coming out. And R.K. Lakshman के कार्टून में एक कॉमन मैन होता था, who was representing our country, our India. तो R.K. लक्ष्मण जी के उस कार्टून में वो भी वहाँ था। जो बच्चा वहाँ अपनी डिग्री लेकर MBBS की बाहर आया था, उसको आर के लक्ष्मण के वो कॉमन मैन जो है वो पूछता है, बेटा बताओ मुझे, आपने तो कहा था कि जब मैं MBBS की डिग्री लेकर बाहर आऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, प्रैक्टिस शुरू करूंगा, तब मैं देहात में जाऊंगा, गांवों में जाऊंगा। तो अभी भी आपकी वही इच्छा है, अभी भी वही संकल्प है? यू आर स्टिल डिटरमाइंड टू डू दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप एंड स्टडीज? वो बच्चा बोलने लगा, who was newly who became a practitioner, medical practitioner, वो बोलने लगा, हाँ हाँ आज भी है, मैं देहात में जाऊंगा, लेकिन मेरा जो देहात है, मेरा गांव है, वो अमेरिका में है। This was the mentality of our youth. R.K. Lakshman was presenting very aptly what we were thinking that day, on those years. लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर ऐसी सोच मेरे मन में नहीं है, then we are useless, rudderless. मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। There was mention of Prime Minister of our country. प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, वो सोच ऐसी है, He is looking at you all people. और क्या सोच रहे हैं वो? 2047 में, by the year 2047, what he is aiming at? विकसित भारत। आज से लगभग 22-23 साल के बाद हमारा देश जो है, it will not be a developing country. It will not be a underdeveloped country. It will be a developed country. By the year 2047, we will be a developed country. विकसित भारत का सपना। और किसको सामने रखा है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने? आप सबको। You all are his destination. उनका जो एफर्मेशन है, उनका जो एसर्शन है, और वो जो भविष्य देख रहे हैं, वो आपकी आंखों में देख रहा है। प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं आपको। क्योंकि आज के बाद 20-22 के बाद क्या होगा पता नहीं हम सबको। Even I don't think I will be that time by 2047. But my dear young friends, you will be there. You are destiny of my country, my nation, my Bharat. So you are there, you will be there. अगर मुझे आज से 20-22 साल बाद अपना देश विकसित भारत करना है, I have to work today and not tomorrow. Tomorrow will be late. आज काम करना पड़ेगा मुझे, आज से काम करना पड़ेगा।
और विकसित भारत का सपना अगर मेरे सामने है, what else I want as a destination, what else I want as a goal, that is my goal, that is my destination. I know now where to travel and how to travel. कैसे जाएंगे? This journey of about 25 years will be towards this destination. This is what we need to do. Destination नहीं है तो गलत हो जाता है सब कुछ। इसीलिए हम सबको हमारी शिक्षा, अगर मैं यहां पूछूंगा, मुझे आप बताएंगे, अगर किसी भी एक विद्यार्थी को मैंने पूछा कि आपके आफ्टर योर स्टडीज व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कोई बता सकता है मुझे? मेरे पास एक ऐसा कागज आ सकता है, आफ्टर आई कंप्लीट माई स्टडीज I will get a one kagaj that we call a certificate, a passing certificate, maybe graduation or a post graduation. इसका अर्थ क्या है? मैंने आज अभी यहाँ आने से पहले कुछ यहाँ के शिक्षाविद जो बुलाए थे अपने वाइस चांसलर साहब ने, शिरोडे ने, उन्होंने बुलाए थे उनको. इनफैक्ट आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एजुकेशन, बट दे ऑल वेर सिटिंग देयर. सो मैंने कुछ तो बताना है उनको ना, मेरे लिए तो आए थे. तो मैंने उनको यही एक इंसिडेंट बता दिया, यही एक घटना बता दी, और कि मैंने बता दिया उनको कि हमारी शिक्षा जब होती है हमारे बच्चों की, तो हमारे बच्चों के मन में क्या होता है. जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज मैं मेरा सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में जाता हूँ, वहाँ किसी एमएलए को पकड़ता हूँ, या मेरी अगर दोस्ती कुछ मिनिस्टर से है, संबंध है, उनको पकड़ता हूँ, तो आई टेल हिम, सी आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, नाउ इट इज़ योर वर्क टू गिव मी जॉब. मुझे नौकरी दे दो, मैंने तो मेरी स्टडी कंप्लीट कर दी. मेरे दोस्तों, यू हैव टू थिंक, आर वी हियर टू डू सम नौकरी फॉर समबडी एल्स? दूसरों की नौकरी करेंगे हम? क्या मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आ सकता कि मैं यहां खड़ा रहकर, यस आई विल बी स्टैंडिंग ऑन माई फीट एंड आई विल नॉट बी अ जॉब सीकर, आई विल बी जॉब गिवर. मैं जॉब गिवर बनूंगा. यह सोच हमारे मन में आनी चाहिए. सर्टिफिकेट लेकर ऐसे घूमने वाले बहुत सारे होते हैं, बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन. मैं आपको एक उदाहरण बता, मेरे पास ऐसी कहानियां बहुत हैं, तो एक उदाहरण मैं बता देता हूं. आपने जकीर हुसैन का नाम सुना है? कौन? तबला वादक. दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई. उनके पिताजी का नाम जानते हैं आप? हाँ, somebody said अल्लार खां. अल्लार खां या अल्लाह रखा ऐसा कहते हैं. अल्लार खां के बारे में एक ऐसी कहानी बताई जाती है. अल्लार खां वॉज अ मास्टर एट तबला. उनका अगर आप तबला, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, लेकिन उनका तबला, मुझे थोड़ा म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने उनका तबला वगैरह बहुत बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं. जकीर हुसैन भी इतने अच्छा बजाते थे. एक बार अल्लार खां को उनकी इस कला को लेकर बाहर विदेश में जाना था, और अल्लार खां जब जाने लगे तो उस समय की अवस्था, आज तो पासपोर्ट तुरंत मिल जाता है. पासपोर्ट कभी एक 50 साल पहले तो पासपोर्ट था ही नहीं वैसे, तो वहाँ जाना पड़ा पासपोर्ट ऑफिस में. उनको जाने के बाद वहाँ फॉर्म भरना, ये करना है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी. तो उनको पता नहीं था, इतने वैसे पढ़े लिखे तो थे नहीं, टैलेंट तबला वादन की बहुत थी. तो वहाँ जाकर जो क्लर्क पासपोर्ट ऑफिस में बैठता है, उसने पूछा, आपको ये सब भरने के लिए नहीं आता है तो आप विदेश जाते हैं क्यों? क्यों जाते हैं विदेश में? तो नहीं, मुझे तो बताओ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती ठीक, और कुछ आप तो भर के, नहीं, आप जाइए, आपको विदेश में जाने की आवश्यकता ही नहीं है. जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती, ये फॉर्म भरने के लिए भी नहीं आता, क्यों जाते हैं आप विदेश में? तो अल्लार खां ने
उस क्लर्क को एक प्रश्न पूछा आप कितने पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो अभी बीकॉम कर चुका हूँ। उस समय बीकॉम भी बहुत बड़ा था ना, बीकॉम कर चुका हूँ। तो अल्लार खां जी ने पूछा कि इस शहर में कितने बीकॉम हैं? उन्होंने कहा हाँ होंगे 100-200 वगैरह। अच्छा अपने पूरे प्रांत में कितने होंगे? होंगे 10,000। पूरे देश में कितने होंगे बीकॉम? बहुत सारे हैं। उन्होंने पूछा पूरे विश्व में जगत में कितने बीकॉम जिन्होंने पास किया ऐसे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ करोड़ों में होंगे, है ना? तो बीकॉम सभी देशों में है, अल्लार खां सब देश में नहीं है। अल्लार खां ये अकेला है इस पूरी दुनिया में, और इसीलिए अल्लार खां को बाहर जाना है। Such a great person he was so talented and he was needed everywhere. क्या हम हमारा जीवन ऐसा कर सकते हैं कि अल्लार खां जैसे उन्होंने जैसे कि अल्लार खां के पास बाकी की कुछ टैलेंट नहीं थी, लेकिन तबला वादन में इतने माहिर थे पूरे विश्व के लिए, तो लोगों को बाहर से डिमांड आती थी। बीकॉम वाले को वहां से डिमांड नहीं आएगी, पता था उस समय उसको, उनको भी। बीकॉम करने वाले बहुत सारे हैं। अल्लार खां इज द यूनिक, ओनली यूनिक पर्सन। ऐसा था। ये सोच हमारे मन में आने की जरूरत है मेरे दोस्तों। हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आई एम अ डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स अदर। जो भी हैं उनसे मैं कुछ अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं। मैं मेरे खड़े रहूंगा मेरे पांवों पर, दुनिया को दिखाऊंगा। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये वगैरह सब। अपना यहाँ की सरकार हो सकती है अपनी, और यहाँ केंद्र की सरकार हो सकती है। उनके पास ऐसे स्टार्टअप्स के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं। I was just asking the vice chancellors and all them कि you have to have one incubation center and entrepreneurship development center in each university. They said they have. इसका लाभ उठाइए, कुछ बनने का सोचिए। डोंट बी जॉब गिवर सीकर। जॉब सीकर बनने की आवश्यकता नहीं है, जॉब गिवर बनेंगे। जॉब सीकर भी चाहिए, बाद में हमको नौकरी करने वाले भी चाहिए, लेकिन आज हमारे पूरे युवा पीढ़ी की ऐसी मानसिकता होने की जरूरत है, आई विल बी जॉब गिवर, आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और ऐसे कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मुझे लगता है इस दिशा में सोचने की हम सबको आवश्यकता है। एक इकोनॉमिस्ट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका कहना ऐसा है, he is defining our mental state of our youth in this country. He says every Indian youth prefers to have guaranteed poverty to risky prosperity. एक guaranteed poverty और risky prosperity क्या होती है? guaranteed poverty का मतलब है किसी की नौकरी करना। आपको जो तनख्वाह 1 तारीख को या 31 को मिलती है, वो तनख्वाह इट इज अ गारंटेड वन। आपको इधर उधर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटेड पॉवर्टी, आपने वहां अगर 2 दिन ज्यादा काम किया तो आपका पगार पेमेंट नहीं बढ़ता। आपको अगर 80,000 मिलने हैं, 80,000 ही 31 को आ जाएंगे। आप अब थोड़ी देर और वहां बैठकर काम करेंगे तो 80,000 ही मिलेंगे। बट इफ यू आर अ मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी and if you are doing something, then रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए। रिस्क की प्रॉस्पेरिटी जो होती है, वो प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्क लेनी है। खुद का व्यवसाय, इट इज अ रिस्क, आई नो, बट इट गिव्स यू द प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। दैट रिस्की प्रॉस्पेरिटी इज नीडेड। रिस्क लेने की ताकत किस में है? मुझ में नहीं है, आप सब में है। You are prepared for this. You have to do this. You are the people who will be able to take any risk. यहां बैठे वाले सब रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। अरे क्या है, हम तो बन चुके हैं, अब हो चुका है सब कुछ। But my dear young friends, you are here for that risk.
ऐसी रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर यह रिस्क अगर हम लेते हैं, then nobody can stop us. So we prefer risky prosperity, not the guaranteed poverty. ये हमारे बीच की सोच होनी चाहिए, और इसके लिए जब हम तैयार हो जाएंगे तो विकसित भारत का सपना कोई रोक नहीं पाएगा। विकसित भारत, that is what we will be by 2047. By 2047 भारत विकसित भारत हो जाएगा। यह एक हमारा सपना है। We will be starting to work for that from today. आज की तारीख में हम काम करना शुरू करेंगे। Let us decide. You have consultations with all your friends, parents, neighbors, teachers, professors and guides. They will be certainly be very happy to tell you, yes, this is the way where you have to go. This is the way where you have to travel. This is how you can achieve. ये सब देने के लिए तैयार हैं। Now you have to be ready. You have to be ready. हमारे देश का सपना जो सामने दिखेगा वो ऐसा ही होगा, और जो हम करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। आप ही करके, ऐसा निश्चय आप ही कर सकते हैं। Whatever you have to decide, decide it today, and decide it in a very disciplined manner. That is what I have to tell you, my dear friends. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.